Hello viewers, welcome to my YouTube channel English for Intermediate Classes. This is Deepak Kumar Best, lecturer, GIC Chorus and Chamoli. In this video, I'm going to explain some of the difficult words and phrases appeared in the lesson Lost Spring, the Stories of Stolen Childhood by Anish Jung. First one is scrounging. Here the scrounging means searching for something. And scrounging has a real meaning, which is collect or look around for food or ask for and get something free. That is called scrounging. But the writer Anish Jung has used the word scrounging here in the sense of searching for something. Synonym for scrounging is foraging, catching. How we can use this word in a sentence? She saw him scrounging for gold in the garbage. She saw him searching for gold in the garbage. Scrounging here means searching for. Amidst. Amidst means in the middle of. And its synonym is amid. A-M-I-D. Amidst his study, he took a break. अपनी पढ़ाई के बीच में उसने एक ब्रेक लिया. Mutters. Third is mutters. Mutters means to speak in a low voice. धीरे से बुदबुदाना. Murmur or mumble are its synonyms. Sahib muttered, but she could not understand. साहिब बुदबुदाया लेकिन वह समझ नहीं पाई. Glibly. Glibly means speaking or spoken in a confident way but without careful thought or honesty. यानी बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोलना, लेकिन बोलने से पहले उसको ध्यान से नहीं तोलना. यानी सोच समझकर बिना सोचे समझे लेकिन बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से बोलना, यानी आत्मविश्वास से बोलना. US President glibly said Corona will die itself with advent of summer season. US President glibly said Corona will die itself with the advent of summer season. यानी US के राष्ट्रपति ने बिना सोचे समझे आत्मविश्वास से ये कह दिया कि कोरोना गर्मी के सीजन के साथ गर्मी के सीजन आते ही स्वयं ही मर जाएगा. Next word is hollow. Meaningless. Hollow means meaningless or empty. Its synonyms may be empty, vacuous. Politicians make hollow promises during general elections. यानी राजनीतिज्ञ या राजनेता जनरल इलेक्शंस के समय खोखले दावे करते हैं या झूठे दावे करते हैं या झूठे वादे करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एम्बेरेस्ड. फीलिंग अशेम्ड यानी शर्मिंदगी महसूस करना. इसका सिनोनिम, इसकी पर्यायवाची हैं अशेम्ड, ill at ease, self-conscious. Prince felt embarrassed when he could not keep his promise. Prince अपना वादा पूरा न कर पाने के कारण शर्मिंदगी महसूस करता है.
abound. Next word is abound. Abound means exist in large numbers, यानी बहुतायत में होना. Abundant, plentiful are its synonyms. American and European nations abound in COVID-19 cases. यानी अमेरिकी और यूरोपीय देशों में कोविड-19 के केस बहुतायत में हैं. Bleak means dim, inhospitable. Bleak, you can not empty but dark. Here it will be dark. Dark. Its synonym will be dim, inhospitable. The future of the slum children is bleak in India. यानी भारत में स्लम चिल्ड्रन का भविष्य अंधकार में है. डार्क, अंधकार में. He would have a hard time believing it. It means this is a phrase. It means it would be difficult for him to believe that his name meant the Lord of the universe. Here means it would be difficult for him to believe. He would have a hard time. This is the it was the part of the text of the lesson Lost Spring, so it was used in the same context, but its meaning is it would be difficult for him to believe. One would have hard time believing it. Most of COVID-19 cases have been reported from developed countries which have best health and medical facilities in the world. यानी किसी को भी यह विश्वास करने में बहुत मुश्किल होगी कि कोविड-19 के अधिकतर केस ऐसे विकसित देशों से आए हैं जहां मेडिकल और हेल्थ की सबसे उत्तम फैसिलिटीज मौजूद हैं. Next is barefoot. Barefoot means wearing nothing in the feet. Shoeless means no footwears. Slum children are often seen wandering barefoot on the streets of big cities. यानी शहरों की सड़कों पर अक्सर स्लम चिल्ड्रन या झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे नंगे पांव दिखाई देते हैं. Shuffles. Next word is shuffles. Slides them over each other. यानी एक के ऊपर दूसरे को रखना, मिक्स करना. एक को दूसरे के ऊपर रखना, मिक्स करना. इसका सिनोनिम है मिक्स. Playing cards are shuffled before the game of cards. यानी प्लेइंग कार्ड्स को रीशफल किया जाता है जब हम कार्ड से कोई गेम खेलते हैं. प्लेइंग कार्ड्स के कोई गेम खेलते जब, यानी ताश का गेम हम खेलते हैं जब, तो पत्तों को पहले मिक्स करते हैं, रिशफल करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्यूज. रीजन टू जस्टिफाई अ फॉल्ट. जस्टिफिकेशन इसका सिनोनिम है, पर्यायवाची है. लॉकडाउन शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर द स्टूडेंट्स एज टीचर्स आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. यानी लॉकडाउन के समय में बच्चे इसको एक्सक्यूज ना बनाएं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि भाई लॉकडाउन है, क्योंकि टीचर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो इसमें पढ़ाई में बच्चों के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है. उनको भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टीचर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. नेवर एंडिंग कंडीशन ऑफ बीइंग पुअर. इसका अर्थ है कि एक गरीबी की निरंतर
रहने वाली एक अवस्था, जो कभी खत्म न होने वाली गरीबी की अवस्था, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इसको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी भी कह सकते हैं, यानी गरीबी का क्रूर चक्र। The poor are trapped in the perpetual state of poverty due to increasing economic inequality in the country। यानी देश में आर्थिक असमानता के बढ़ने के कारण जो गरीब लोग हैं वे सदा के लिए गरीबी के चक्र में फंस कर रह जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेसोलेशन। द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी, डिकेड और डिस्ट्रॉयड, यानी खाली, कुछ जो स्थान खाली हो जाता है, ऐसी स्थिति की खाली हो जाना या बर्बाद हो जाना, डिकेड हो जाना। आइसोलेशन, लॉनलीनेस, सॉलिट्यूड इसके सिनोनिम्स हैं। Many villages in Garhwal region are facing desolation due to migration। यानी यहाँ से विस्थापन के कारण कई गांव जो है गढ़वाल क्षेत्र में कई गांव डेसोलेशन की समस्या झेल रहे हैं। वे खाली होते जा रहे हैं, वीरान होते जा रहे हैं। डेसोलेशन माने यहाँ वीरान होना है, वीरान की अवस्था जो है। नेक्स्ट वर्ड है पेंटिंग, टेकिंग शॉर्ट एंड क्विक ब्रेथ्स। इसका सिनोनिम है गैस्पिंग। एज ही असेंडेड द हिल ही स्टार्टेड पेंटिंग, यानी जैसे ही वह पहाड़ चढ़ने लगा वह हाँफने लगा। पेंटिंग मीन्स होता है हाँफना। acquaintance, acquaintance मीन्स कॉन्टैक्ट्स या familiarity, एसोसिएशन इसके सिनोनिम्स हैं। he has many acquaintances in this place, यानी इस जगह पे उसके कई जानने वाले हैं। acquaintances मीन्स जानने वाले, मित्र। नेक्स्ट वर्ड है पेरिफेरी। पेरिफेरी मीन्स होता है आउटर एरिया, बाउंड्री। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं बॉर्डर, आउटस्कर्ट्स, बाउंड्री, फ्रंटियर, फ्रंट लाइन। इसका यूज सेंटेंस में कैसे करेंगे? अरुणाचल इज सिचुएटेड एट द पेरिफेरी ऑफ इंडिया, यानी अरुणाचल भारत के बॉर्डर पर स्थित है। भारत और चीन के बॉर्डर पे है ना अरुणाचल, तो अरुणाचल इज सिचुएटेड एट द पेरिफेरी ऑफ इंडिया। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मीन्स सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली को हिंदी में हम कह सकते हैं प्रतीकात्मक, और इसका सिनोनिम्स हैं, इसके पर्यायवाची हैं फिगोरेटिवली, नॉन लिटरली। फिगोरेटिवली और नॉन लिटरली। मेटाफोरिकली कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी प्रतीकात्मक रूप से कैमल जो है रेगिस्तान का जहाज होता है। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वैटर्स, अ पर्सन हु अनलॉफुली occupies an uninhabited building or unused land, यानी वह व्यक्ति जो गैर कानूनी तरीके से किसी खाली बिल्डिंग में या ऐसे स्थान में जो अभी प्रयोग में नहीं है वहाँ पर बसता है, उनको इंट्रूडर भी कहते हैं, इंटरलोपर भी कहते हैं, कॉलोनिस्ट्स भी कहते हैं या ट्रेसपासर्स भी कहते हैं। ये सब इनके सिनोनिम्स हैं। मैनी स्लम ड्वेलर्स स्क्वैटर्स इन द सिटीज, बहुत सारे स्लम ड्वेलर्स, झुग्गी झोपड़ियों में, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करते हैं। विल्डरनेस, विल्डरनेस मीन्स अ वेस्ट लैंड, बंजर भूमि जिसको बोलते हैं, बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, वाइल्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। चंबल इज अ विल्डरनेस, चंबल की जो भूमि है वह बंजर भूमि है। बीहड़ भी इसको कहते हैं हिंदी में। टारपोलिन, हैवी ड्यूटी वाटर, टारपोलिन एक हैवी ड्यूटी वाटरप्रूफ क्लॉथ होता है, यानी
मोटा कपड़ा, कोर्स क्लॉथ, इसको हम कोर्स क्लॉथ भी कह सकते हैं। हैवी ड्यूटी जो होता है कोर्स क्लॉथ होता है। जैसे हम हमारे यहाँ त्रिपाल होती है, तो त्रिपाल या ग्राउंड शीट ये कोर्स क्लॉथ से बनाए जाते हैं, हैवी ड्यूटी वाटरप्रूफ क्लॉथ से बनाए जाते हैं। द पुअर यूजेस टारपोलिन टू कवर देयर रूफ्स। गरीब लोग इस मोटे कपड़े का, वाटरप्रूफ कपड़े का प्रयोग अपनी छत को ढकने के लिए करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज परमिट्स, लीगल डॉक्यूमेंट गिविंग ऑफिशियल परमिशन टू डू समथिंग। परमिट्स का अर्थ होता है लाइसेंस, इसका सिनोनिम है लाइसेंसेस। ठीक है, परमिट्स यानी लाइसेंसेस। दे हैव नॉट परमिट टू रिसाइड इन दिस प्लेस। उनको इस जगह में रहने का उनके पास परमिट नहीं है, आज्ञा नहीं है। लीगल डॉक्यूमेंट होता है एक। ठीक है, जैसे हमारे पास लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो गाड़ी चलाने का हमें अथॉरिटी है, उसमें दी गई परमिट दिया गया है। टैटर्ड, टैटर्ड मीन्स होता है टॉर्न और रुइंड यानी बर्बाद, जो पुराना होके जो खराब हो चुका है, फट चुका है या बर्बाद हो चुका है। इसका और अर्थ है, इसके सिनोनिम्स हैं worn out, shattered. The beggar had worn a tattered coat. यानी भिखारी ने एक फटा पुराना कोट पहना हुआ था। टैटर्ड कोट यानी फटा पुराना, जो धूल धूल से तो पुराना होके फट जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिट होम्स। ट्रांजिट होम्स ये टेम्पररी होम्स या शेल्टर्स होते हैं। ठीक, द जिप्सी लिव्स इन अ ट्रांजिट होम्स। तो बंजारे जो होते हैं जिप्सी, वे ट्रांजिट होम्स में अक्सर रहते हैं टेंट बना के। ठीक है, जहाँ उनको खाना वगैरह मिलता है, वो वहाँ कुछ दिन वहाँ रहते हैं। जब वहाँ खाना खत्म हो जाता है तो वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे चरवाहे भी यहाँ जिप्सी के जैसे रहते हैं, अपनी बकरियों को चराने के लिए या गाय या भैंसों को चराने के लिए भी। यहाँ जैसे गढ़वाल में भूटिया लोग जिप्सी की तरह चलते हैं। कभी गर्मियों में वे पहाड़ों में जाते हैं और सर्दियों में वे गर्म इलाकों में आ जाते हैं। कंटेंट, सेटिस्फाइड। कंटेंट सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड या संतुष्ट। appeased, happy, satiated. He was content with his second position in the class. यानी वो कक्षा में अपनी द्वितीय श्रेणी आने पर संतुष्ट था। Discarded, इसका अर्थ है thrown away। इसके सिनोनिम्स हैं discarded, forsaken, deserted, abandoned, discontinued, neglected. People discarded the old buildings and built new ones to live in. हम यानी लोगों ने अपनी पुराने मकान उनको छोड़ दिया, फॉरसेक कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, और उनकी जगह पर नया मकान बनाया। यानी और कहीं भी बनाया भले, लेकिन वहाँ उसके बदले में नए मकान बनाए और वहाँ रहने लगे। नेक्स्ट वर्ड है बॉदर। बॉदर मीन्स वरी, कंसर्न, एंग्जाइटी, स्ट्रेन, अडो, ये इसके सिनोनिम्स हैं। डू नॉट बॉदर अबाउट रिजल्ट बट ट्राई योर बेस्ट टू पास द एग्जामिनेशंस। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, इट मीन्स विद कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। Looking